ہر مشکل کی غذا ہے، ناکامیاں، مسائل اور مشکلات، پریشانیوں کا حل ہے یہ درود۔ اور اس درود کے اندر زندگی ہے، صحت ہے، بزرگی ہے، برکت ہے، راحت ہے، رحمت ہے، عافیت ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا کوئی زندگی کا چلتے چلتے نصیحت فرما دے۔ بڑے اللہ والے تھے، ولی گر تھے، ایسے جن کی وجہ سے ولایت ملی، ایک کو نہیں، سینکڑوں کو نہیں، ہزاروں کا نہیں، لاکھوں نہیں، بے بہا کو۔ حضرت کوئی نصیحت فرما دے، زندگی میں کوئی سبق دے دے، بہت عجب بات ہو۔ فرمایا زندگی میں جب بھی کوئی مشکل پریشانی الجھے، اور جب بھی کوئی ناکامی، دکھ، تکلیف ہو، اور جب بھی کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہو، اول آخر یہ 3 دفعہ درود شریف پڑھے میرے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ فرمایا کہ یہ درود پاک اول آخر 3 بار پڑھیں، اور ایک بار سورت فاتحہ پڑھیں، اور 3 دفعہ سورت قل هو اللہ پڑھیں، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ۔ اور یہ پڑھ کے حضرت مختوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ہدیہ کرے، پھر جو مراد پائیں، جو مسئلہ پائیں سو ملے۔ پرانی بات ہے کراچی کی، رش بڑھ گیا، میں نے پھر کراچی جانا چھوڑ دیا، تو بہت رش تھا، اور میری سواری کا وقت اس وقت 7 بج رہے تھے، 9 بجے سواری کا وقت تھا، اور مجھے گاڑی لے کے میرے مخلص ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے، گاڑی لے کے میں باہر نکلا نا، بہت سے لوگ ہیں، آپ سے ٹائم چاہیے، آپ سے وقت چاہیے، معذرت بھی ہوئی، ندامت بھی ہوئی۔ میں نے کہا سواری کا وقت، ایسے میں نے دیکھا، ایسے دیکھا تو ایک صاحب کھڑے تھے، میں نے کہا آؤ جلدی کرو میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، اور جہاں تک میں جاتا ہوں وہاں تک باتیں کرتے رہنا۔ پیچھے میرا بیگ تھا، آگے میں بیٹھا، ادھر وہ صاحب جن کی گاڑی تھی ڈرائیو کر رہے تھے، ادھر وہ صاحب بیٹھے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا کہ ان میں سے میں نے کس کو کیوں بٹھایا۔ میں نے کہا نکلیں جلدی کریں، گاڑی میں ہم کو جانا ہے، 9 بجے کی سواری۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا میں نے آپ کو کیوں بلایا؟ تو کہہ رہے تم کیوں نہ بلاتے؟ پٹھان تھا، کرک کیوں نہ بلاتا یار، اس کے لہجے پہ، اس کے انداز پہ یہ کیا کہتا ہے، کہہ رہے تم کیوں نہ بلاتے، ہم نے تمہارا وظیفہ پڑھ دیا۔ کون سا وظیفہ نہیں؟ کہہ رہے یہ یا والا پھر درود پاک، ایک دفعہ سورت فاتحہ، 3 دفعہ قل هو اللہ، غریب بات۔ اچھا، میں نے کہا اس وظیفے کے اور بھی فائدے ہیں؟ بڑے جری ہو کے پٹھان مجھ سے بات کر رہا تھا، کہنے لگا ہاں میری چھٹی تھی، گٹھڑی باندھی ہوئی تھی، غریب آدمی ہوں، سپاہی ہوں، کچھ زیادہ پیسے مال تو ہے نہیں، تھوڑی سی تنخواہ ہے، میری گٹھڑی تھی، اور میں گٹھڑی لے کے کھڑا تھا۔ میں نے کہا یا اللہ، افسر لوگ جاتے ہیں نماز اس کے لیے جہاز پہ، کبھی میں بھی جہاز میں سفر کر سکوں گا؟ دیکھتا ہوں جہاز اڑتا ہے، کہتا میں ایئر فورس میں ہوں، ملازم ہوں چھوٹا سا، جہاز اڑتا ہے، میں بھی کبھی جہاز میں سفر کر سکوں؟ تو میں بچوں کے ساتھ تھا، میرے ایک افسر تھا، اس کا نام تھا سبحان اللہ خان۔ سبحان اللہ، جی سر، جی سر، کہاں جا رہے ہو؟ سر میں نے تو اپنے گھر چھٹی کر کے جا، کہہ رہے ہمارا جہاز تیار ہے، اور قدرتی جہاز جا رہا ہوگا،
کہنے لگے میں حیران، بچے، بیوی، میری گٹھڑی، وہ ساری جہاز میں. اس سے کہنے لگے حکیم صاحبہ ہم نے 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے اندر اپنا شہر پہنچ گیا. یار اب تم کون ہوتے ہو، تم کیوں نہ بلاتے؟ دا خبر ہے یہ صبح کی بات ہے. میں وہاں وضو خانے میں بھاگ دوڑ خدمت میرے ذمے ہے کھڑا تھا، تو ایک پٹھان پوچھنے لگا، کہنے لگا کہ یہاں سے باہر جانے کا راستہ کہاں؟ میں نے پوچھا بابا کیوں؟ کہنے لگا بس ہمارا دل خفا ہو رہا ہے، ہم جائے گا. وہ پیر صاحب ملتا ہی نہیں. میں کہ پیر صاحب سے ملوائے گا نا یار تم. وہ بیٹھا ہے پٹھان، کوئی نہیں بیٹھا کہاں ہے؟ بیٹھا تو ہے، بیٹھا ہوگا پٹھان ہے. کہہ رہے پیر صاحب سے ملتا ہے، پیر صاحب ملتا ہی نہیں. اوپر سے ایک اور پٹھان آ گیا، حضرت صاحب السلام. میں کہ استا خبرہ کی گئی، اس کا پختو سرے وایا اس سے تو. اس نے کہا دا غٹ پیر دے دا دے کا نام، یہی تو پیر صاحب ہے. اس نے پہلے چادر اتاری پٹھان نے، میں کہ شاید رائفل نکالتا ہے. اس نے چادر اتاری، پھر اس میں سے بیگ نکالا، پھر بیگ میں سے ایک زپ کھولی، دوسری کھولی، اس کے اندر چاولوں کا، کچے چاولوں کا ایک شاپر تھا. کرے یہ دم کر دو. نہ میں سونی نہ دولت بندے کیوں کر یار مناؤں. اعمال کو یقین سے کرو، درود پاک کو یقین سے کرو، اور یقین بھی ایسا ہو جو کامل ہو، مکمل ہو، اکمل ہو. شک کی دنیا میں رہے، کشتی میں بھی رہے، اور شک کی دنیا میں رہے کہ نامعلوم یہ کشتی مجھے منزل تک پہنچائے گی نہ پہنچائے گی. مزہ زندگی کا نام ہے. کشتی میں بھی ہے اور شک کی زندگی میں رہے. نامعلوم زندگی میں مجھے منزل تک پہنچنا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ڈبو دے گا. یقین، اور یقین کامل. اور پکی بات بتا دوں، تیرے یقین کو، تیرے یقین کو، تیرے یقین کو من قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تیرے یقین کو یہ چیزیں پکڑ کے جھنجھوڑیں اور ٹٹولیں گے. کبھی اندر سے بدگمانی اور شک، کبھی باہر سے آوازیں اٹھیں گی، تیرے یقین کو ٹٹولیں. بے یقین زندگی گزارے گا، صدیوں چلتا رہے، ہزاروں سال چلتا رہے، کبھی منزل نہیں ملے گی. اور یقین کی زندگی گزارنے والا، یقین کی زندگی گزارنے والا، اس کو وہ ملتا ہے اور وہ پاتا ہے. اس درود پاک کو یقین کے ساتھ. اس پٹھان کو یقین، کہنے میں جہاز میں سب، میری گٹھڑی، میری سب کچھ. میں نے کہا کتنے دن کا سفر تھا؟ کہہ رہے 3 دن میں نے ٹرین میں لگانے تھے. اب فاسٹ ٹرین تو سسلاب شروع ہوا اس وقت تو شاید تھا ہی نہیں، اور ٹرین کا شو بیچارہ اب فرسٹ کلاس میں تو نہیں آ سکتا تھا، سفید پوش آدمی. 3 دن میں نے ٹرین میں گزارنا تھا، اور 3 دن کے کیا گھنٹے، 1.25 گھنٹے کے اندر جہاز لینڈ ہوا. اس نے کہا آؤ جی تمہارا شہر آ. اس یقین سے زیادہ، اس سے بھی زیادہ. کیسا یقین؟ قحط سالی تھی، بارش نہیں ہو رہی، اور ویرانے کے اندر جا کے دعائیں کی جا رہی تھی. لوگ جا رہے تھے ویرانے میں دعائیں کر. ایک بچی بھی جا رہی تھی، وہ چھتری ساتھ لے کے، چھتری ساتھ لے کے جا رہی. جو چھتری کو لے کے جا رہی، ابھی دعا نہیں ہوگی بارش کی، پھر بارش ہوگی نا. جب بارش ہوگی پھر میں بھیگوں گی نہیں، میں پہلے سے چھتری لے کے جاؤں. اس کو میں کہا کرتا ہوں چھتری والا یقین. ایسا ایسا کامل ایمان، اعتقاد. پھر دیکھ زندگی کے فیصلے، پھر دیکھ اللہ کی مدد، پھر دیکھ اللہ کے نام کی برکت، پھر دیکھ آنکھوں سے اللہ کی عطا اور عنایت. یہ زندگی کے فیصلے اور اس وقت ہوں گے جب تو یقین کامل پہ آئے. شک اور وسوسوں سے نکلے گا،
वसाविस और बदगुमानी से निकलेगा, फिर तो यकीन कामिल पे आएगा। फिर जब यकीन कामिल पे आएगा, फिर एक दफा पढ़ा हुआ दरूद तेरा 1.25 लाख दरूद पढ़ने के बराबर होगा। मैं यकीन से कह रहा हूं, मैं ईमान से कह रहा हूं, मैं रब्बे काबा की कसम उठा, एक दफा पढ़ा हुआ दरूद। और इस यकीन को मैं कुरान से बयान करता हूं, वमन यतवक्कल अलल्लाह, आओ मुझ पे यकीन कामिल करो, फहुवा हस्बुहु, मैं फिर तुम्हारे साथ हूं, फिर तुम्हारे लिए काफी। इसके लिए अल्लाह काफी हो गया, उसी के लिए कायनात का सारा निजाम है, और उसी के लिए है ये जहां चीज है कि अल्लाह कलम तेरे हैं, इसके लिए अल्लाह काफी, अल्लाह काफी। हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह काफी है। अलैहि तवक्कल, मैं उसी पे मेरे सारे भरोसे हैं, उसी पे मेरे सारे मान हैं, उसी पे मेरे सारे इरादे हैं, और उसी पे मेरा सारा यकीन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की किताबों की किताबें भरी हुई हैं रब के साथ मुनाजात और मांगने में, मांगते 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 किताबें मुनाजात, किताबों की किताबें भरी, किताबों की किताबें आले रसूल की, असहाब रसूल की भरी हुई हैं कि उन्होंने अल्लाह से मांगा। मुझे रोज उसके गम में, मुझे रोज उसके गम में यूं ही सारी रात करना, कहीं चुप के रोना, कहीं दिल से बात करना, ये मांगे और इस दरूद को गिड़गिड़ा के पढ़े। तस्बीह खाने आए हैं ना अजवेरी महल, यहां से खाली नहीं जाना इंशाअल्लाह, खाली नहीं जाना इंशाअल्लाह। और एक मेरी दरखास्त और भी है, अपनी नस्लों को फकीर, मंगता, भिखारी, मोहताज न छोड़ के जाना। आप कहेंगे ये हमारे बस में नहीं है, मैं कहूंगा आपके बस में है। क्यों? आमाल पे नस्लों के पलने के वादे हैं, आमाल पे नस्लों के पलने के वादे हैं, आमाल पे नस्लों के पलने के वादे वादे हैं। आमाल सच्चे, रब सच्चा और वादे सच्चे। अब तू सच्चा बन के उन वादों को अपने करीब कर ले। अल्लाह करीम गैब के खजाने से तुझे पालेगा, तेरी नस्लों को पाल के दिखाएगा। और अल्लाह पालता है, अल्लाह करता है, और आमाल के जरिए से। और आमाल के अंदर ये जो दरूद पाक है ना, ये ताकतवर अमल है। दरूद पाक की मिसाल ऐसे है कि सारी फाइल तैयार है, सिर्फ आखिरी दस्तखत होना बाकी है, या आखिरी मोहर लगना बाकी है, और उसकी वजह से दर बदर हो रहा। दरूद पाक वो मोहर है जिस पे तेरा अमल भी कबूल, तेरी दुआ भी कबूल, तेरी आसें भी कबूल, तेरी फरियादें भी कबूल, और तेरी सारी मुरादें कबूल है। ये वो दरूद है, पढ़े मेरे साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन वबारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन वबारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन वबारिक वसल्लिम। वादे हैं, सच्चे वादे हैं, नस्लों के पलने के वादे। अपनी नस्लों को गरीब, फकीर, मुफलिस, मंगता, भिखारी छोड़ दे। मैं एक जगह, धूप आ गई तो मैंने कहा गाड़ी को, अपने दोस्त से कहा, मैं कहा जरा दूर कर दो साए में। बंदा खड़ा था, साइकिल के पीछे छोटा सा डब्बा लेके जालियों वाला, उसमें कबूतर थे। और मुझसे कहने लगा, सुना है आप दुआ करते हैं, वजीफे बताते हैं। पहले तो कहा आप मुझे जानते हैं? नहीं। फला फला, हाँ मैं जानता हूँ, मेरे वाले जानने वाले थे, बड़े जिम्मेदार थे। मैं उनका बेटा हूँ। मैं देखा हालात, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास, हालात देखे। मैं दुआ करें मेरा कबूतर का जोड़ा बिक जाए, आज मुझे घी और चीनी चाहिए घर के लिए, वो नहीं, कोई कबूतर का जोड़ा मेरा बिक जाए, दुआ करें। बाप गया, अपना बख्श साथ ले गया, बाप गया अपना मुकद्दर साथ ले गया, बाप गया अपना नसीब साथ ले गया। आप ऐसा न करना। ये दरूद, ये सूरत इखलास,
یہ तस्बीह खाने के वज़ाइफ और आमाल, ये पल पल आपको और आपकी नस्लों को अल्लाह के खजानों के वादे दिलवा रहे हैं। और आप कुरान का एक वादा बताता हूँ। हजरत खिजर और मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान में एक वाक्य है। आप तशरीफ ले जा रहे हैं, एक दीवार गिरी हुई थी, गिरने वाली थी। इन्होंने गिरा दीवार को नबूवत की ताकत से उसको सीधा किया, बना दिया, बेहतरीन कर दिया। इन्होंने पूछा आपने ऐसा क्यों किया? मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिजर से पूछा आपने ऐसा क्यों किया? अब जवाब सुने, कहा दीवार के नीचे खजाना है, अगर दीवार गिरती खजाना खुल जाता, लोग लूट लेते। पर मैं आपने ऐसा क्यों किया? कहा कि इनका जो अब्बा था वो नेक था, नेकी इबादत और अमाल और तस्बीहात का कमाल नस्लों तक चलता है। और इब्ने कसीर ने लिखा है, किताबों में मोतबर ने लिखा है कि वो अब्बा नहीं था, 7 नस्लों पहले वाला अब्बा कोई तस्बीह और तस्बीह खाने से जुड़ा हुआ था, कोई अबकरी से जुड़ा हुआ था। और 7 नस्लों पहले वाले अब्बे की तस्बीहां, मुजाहिदे, कुर्बानियां, वज़ाइफ, अमाल, इबादत, तकवा, तहारत वो नस्लों में मुंतकिल हुआ। उसकी इबादत की वजह से इधर खजाने में। सोचें, नस्लों को फकीर बना के, मंगता बना के ना जाना, बाकी उसके फैसले हैं, बाकी उसका मुकद्दर और नसीब है, बाकी वो बख्त दे या ले। तो तिल मुल्क मन तशा व तंजिउल मुल्क मिम्मन तशा व तो इज्जो व तो जिल्लो, वो उसके हाथ में है। लेकिन वादे सच्चे, रब सच्चा, उसका निजाम सच्चा। ये जो अमाल आप कर रहे हैं पल पल में तस्बीह खाने के साथ, इबादत और खिदमत, इबादत और खिदमत, माशाल्लाह। तंबू लगाने वाले, खाना खिलाने वाले, टूट टूट के खाना पकाने वाले, उसको समेटने वाले, मुख्तलिफ शोबों की खिदमत करने वाले मैं देख रहा हूँ, मेरे अंदर से निकल रही है। वाह खुशकिस्मत हो, अपनी नस्लों को फक्र से बचा रहे हो, गुर्बत से बचा रहे हो, दर दर के मंगता होने से बचा रहे हो, दर दर का भिखारी होने से बचा रहे हो, और दर्द का साइल होने से बचा रहे हो। नसीब वाले हो। मेरे अंदर से सुभान अल्लाह निकलती है। ऐसे चुप करके चला जा रहा हूं, देखता जा रहा हूं। याद रखिएगा, ये आपका किया आपकी 7वीं नस्ल तक भी काम आए। 7वीं नस्ल। एक और बात सुने, ये आपका दरूद पाक का पढ़ना, जिक्र, तस्बीहात, दुआएं नस्लों में ट्रेवल करती हैं, दुआएं नस्लों तक चलती हैं। क्यों? आपने सुना होगा, इस बंदे को, इसको किसी फकीर की दुआ है, माँ बाप की दुआ है, इस बंदे को किसी अल्लाह वाले की दुआ है, बस उसका। फिर आपने एक और बात सुनी होगी कि वो था तो बस था, गया तो सब कुछ खत्म था। सुना, देखा? याद रखिएगा, ये जो आपकी हाजिरी है और यहाँ हाजिरी है, ये आपकी हाजिरी आपकी नस्लों का सरमाया महफूज कर रही है। हाय, कब्रें वरना बेचैन होती है। पर मैं, जिसकी नस्लों में 2 चीजें हों, एक गुनाह हो, एक फक्र हो, एक गुनाह, एक फक्र। फक्र से मुराद गुर्बत, तंगदस्ती, कर्जे, बीमारियां, तकलीफें, नाकामियां, मुकदमात, परेशानियां, मसाइल, ठोकरें, उलझने, हालात, गर्दशें, बंदिशें, जादू, जिन्नात, असरात अगर हों, आलम अरवाह में उनके प्यारों को तकलीफें होती हैं, उनके प्यारों को बेचैनियां होती हैं। और जिसके अंदर ये 2 चीजें ना हो, आलम अरवाह में, कब्रों में उनके प्यारे की कब्रें ठंडी हो। ये आप अपने लिए नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपने लिए। आपको तो मिलेगा मिलेगा, आपको तो मिलेगा मिलेगा, पर ये जिंदगी का सबक फकीर का याद रखिएगा, अपनी नस्लों के लिए कर रहा है, नस्लों के लिए कर रहा है। मुझे एक बंदा कहने लगा, अजीब बात कही, कहा कि आपने मुझे शऊर, तस्बीह खाने, जीना मरना सिखाया। क्या करता हूँ, अपने दादा पर दादा की कब्रों में जाता हूँ, सुना है मेरे दादा पर दादा बड़ी तस्बीहां, नेक, हलाल, हराम, जायज नाजायज का ख्याल रखते थे। उनका जाके रोता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और बैठ बैठ के उनसे बातें करता हूँ। आज आपकी वजह से
सारी दुनिया महंगाइयों का रोना रो रही है, मेरे लिए खुशहालियां हैं। आप कर गए थे, आप कर गए थे। क्यों कहते हैं करे एक भरे नस्लें, एक कर जाता है, नस्लें उसका खमियाजा भुगतती हैं। आप कर गए थे, आज आपकी वजह से मैं खुशहाल हूं। जितने करोने आ जाए, जितने 9/11 आ जाए, जितनी महंगाइयां आ जाए, मैं खुशहाल हूं। क्यों? आपने अल्लाह और उसके हबीब कमली वाले के वादों 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 को पूरा कर दिया, और आपने उधर पूरा किया, इधर अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। और अल्लाह ने कहा ठीक है, मैं तेरी नस्लों को, फिर नस्लों की नस्लों को, फिर उनकी नस्लों को खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, इज्जत के ताज पहनाऊंगा। ये दरूद पाक जो आप पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिआदद कुल्ल दाइन व दवाइन वबारिक वसल्लम, ये दरूद पाक ऐसा नहीं है। ये आपको और आपकी नस्लों के लिए इज्जतों के ताज, बरकतों के ताज, राहतों के ताज, कमालात और बुजुर्गियां आपके लिए कमाइयां करके जा रहे हैं। शुक्र करें रब ने। यहाँ पे एक बंदा था, नामुनासिब नहीं, मैं उसको कहता था कि थोड़ा सा वक्त दरूद पढ़ लिया करो, कुछ वक्त लम्हे सजदों में गुजार लिया करो, दिन में 10-20 मिनट ये कर लिया करो। मुझे कहता था, कभी कहता था ठीक है, कभी कहता था वक्त ही नहीं है, सारा दिन रोजी रोटी धंधे करता हूँ, मसरूफ जिंदगी, फलां जिंदगी करते करते मुझे पता चला कि किसी ना कहानी कैफियत में जेल में चला गया, थाने गया, थाने से जुडिशल चला गया। मैं परेशान हुआ, मैंने किसी पुलिस वाले से कहा, उसने को कोई मसला नहीं, वो खुद साथ हो गया। मैं जुडिशल में जब गया ना, बिल्कुल थाने और जेल सुलाखों के सामने खड़ा था। ऐसे देख के ना मैंने कुछ थोड़ा सा हदिया भी ले लिया। ऐसे देख के मुझे कहने लगा, हकीम साहब वो लफ्ज ना कहना जो कहते थे। मैं कहता था मेरे पास फुर्सत ही नहीं है, अब फुर्सत ही फुर्सत, अब फुर्सत ही फुर्सत, अब लम्हे ही लम्हे हैं मेरे पास, लम्हे ही लम्हे। अपनी जिंदगी में कुछ लम्हे आपने निकाले हैं, आप खवातीन और मर्द कुछ लम्हे गुजारे हैं। यहाँ फकीर बन के रहे, यहाँ मिस्कीन बन के रहे, बादशाह बन के न रहना। अपनी इज्जतों और अजमतों और अपने ताजों को गिरा देना, गिरा देना, इसी में अल्लाह इज्जतें देगा। क्यों? मन तवाज़ा लिल्लाह, अल्लाह कहते हैं मेरे नाम को लेने के लिए छोटे बन जाना। तू जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मौला तू सब कुछ है, तेरा सब कुछ है। छोटे बन जा, फकीर बन जा, तेरे दर का जो भी फकीर है, तेरे दर का जो भी फकीर है, वही दो जहां का अमीर है। उसे बादशाहों से क्या गरज, जो खदा है शाह जहान है। फकीर बन के यहाँ पल पल को दरूद पाक आमाल तस्बीहात में लगा दें, मोबाइल को छोड़ दें, बातों को छोड़ दें, खिदमत का मौका है तो टूट टूट के करें, पल पल को जिक्र और तस्बीह में लगा दें। अल्लाह जिंदगियों के ताज सरों पे रख के आपको इंशाल्लाह घरों में भेजेगा। पल पल को मसरूफ कर, पल पल को दरूद पाक में। और ये दरूद वो ताकतवर दरूद है, और इस दरूद के अंदर जान भी है, शान भी है। इस दरूद के अंदर दुनिया भी है, आखिरत भी है। और इस दरूद के अंदर राहत भी है, रहमत भी है। और इस दरूद के अंदर आफियत भी है, बरकत भी है। और इस दरूद के अंदर 1400 साल का नूर है। हर वली कुतुब अब्दाल का नूर है, हर गौस कलंदर का नूर है, हर अबरार बुजुर्ग का नूर है, अनवारात का भरा हुआ दरूद है। और अल्लाह ने आपको ये सादत बख्श दी है, ये सादत बख्श दी। जुमे का वक्त करीब है, एक सिर्फ आखिरी बात कहूंगा, अपनी चीजों की हिफाजत करें। अभी भी मोबाइल की बहुत सी आवाजें आ रही हैं, जेबों की आवाजें आ रही हैं, जूतों की और बैगों की आवाजें आ रही हैं। जहां भी इस तरह के पिंडाल होते हैं, वहां गिरोह के गिरोह आके सिर्फ इसी काम के लिए आते हैं, हमारी गफलत से गुनाहगार कोई ना हो, हमारी तवज्जो से वो यहां से तौबा करके जाए। तो अपनी गफलत, अपनी चीजों को, मोबाइलों को लगा के सिनाने रख के रात को सो जाना, चार्जिंग पे लगा के एक तरफ हो जाना, अपने बैग मुझे एक अल्लाह वाले ने फरमाया,
कहीं भी पिंडाल में जाना, खूबसूरत बैग ना लेके जाना। खूबसूरत बैग, बिस्तर चाहे अंदर खूबसूरत हो, अच्छा हो, बैग खूबसूरत ना हो। मुझे कहने लगे, देख ये चीनी का पुराना तोड़ा है, इसके अंदर मेरा सब कुछ है, और वो इतना पुराना है कि उसको 4-5 पैमद लगे हुए हैं। कहा कि तुम्हारे खूबसूरत बैग, खूबसूरत जूते, खूबसूरत चीजें ऐसे लोगों की नीयतों में खलल डालते हैं और उसकी वजह से नुकसान होता है। अपनी चीजों पे नजर रखें, अपनी चीजों पे नजर रखें। कोई हमारी गफलत से गुनाहगार, चोर कोई नहीं होता, गुनाहगार हो जाए। चोर कौन होता है? मुसलमान चोर तो हो ही नहीं सकता। कोई हमारी गफलत से गुनाहगार ना हो जाए। अपने मोबाइल, अपनी जेबें, अपनी चीजें, अपने बैग, अपने निजाम और पिंडाल के सामान, जहां जहां आपकी खिदमत की ड्यूटी है, इस पे तवज्जो करेंगे तो दरूद पाक फिर जुबान पे जारी हो जाए। सुनाए मुझे। सुभान, सुभान। फरमाया, अमल ऐसे हैं दो अमल ऐसे हैं जिन अमल की वजह से फरिश्ते उस बंदे के मुंह के साथ मुंह लगाते हैं। एक रोजेदार के मुंह के साथ मुंह लगाते हैं। रोजेदार के रमजान का फर्ज का रोजा हो, फरिश्ते उसके मुंह के साथ मुंह लगाते हैं। एक वो जो दरूद पाक पढ़ता है, ये दरूद पाक पढ़ता है, फरिश्ते उसके मुंह के साथ मुंह लगाते हैं और उससे लज्जत राहत लेते हैं और उससे मिठास लेते हैं। तो मिठास की कैफियत में तसव्वुर करो कि फरिश्ते करीब हैं। 3 बार दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। मैं खामोश क्यों? इसकी लज्जत को जज्ब कर। आपने देखा ना, बाजू का चीज बहुत लजीज हो, ऐसे ऐसे मजा आता है, फिर उसके मजे में मजा आता है, फिर उसको जर्रों में जुबान में अटका हुआ इधर उधर से कोई आ जाए, उसमें मजा। अल्लाह वाले थे और मैं जन्नत को बयान कर रहा था, तो एक मेरे साथ बच्चा बैठा हुआ था। वो जन्नत के मजों में ना ऐसे कर रहा था, उसे इतना यकीन था कि जन्नत के मजे और जन्नत की लज्जत। मैं अचानक ना एक पीर साहब के पास गया, अचानक गया, बड़ी मोहब्बत करने वाले। उनके जल्दी जल्दी करो, खाने पकाओ, फला फला फला। दस्तरखान पे एक साहब, खाने पीने का जौक था, वो मेरे साथ आके बैठ गया। पीर के साथ अच्छी डिश आई और मेरे साथ आके बैठ गया। अच्छा, खाते हुए वो पता कैसे खा रहा था? मैंने कहा शायद मिर्चें बहुत ज्यादा, मिर्च बहुत ज्यादा है। खैर मैं खामोश था, खाना खा लिया। मैंने कहा माशाल्लाह, खाना करे बहुत। मैं कहा मिर्चें थी? करे नहीं। मैंने कहा यूं यूं करे तो करे नहीं, मैंने नहीं की। साथ वाले बताओ, कह रहे तू कर रहा था, कह रहे बस मजा आ रहा था। आप दरूद बताओ कैसे पढ़ना है? ना अभी नहीं, किस मजे से पढ़ना, किन लज्जतों से पढ़ना है? मदीने वाले का दरूद। और दरूद वाहिद इबादत है। गौर से सुनना, कौन सी इबादत? अगर रियाकारी से पढ़ो, दिखावे से पढ़ो, दुनिया में बुजुर्ग बनने की नीयत से पढ़ो, मेरा अल्लाह कहते हैं कबूल, कबूल है। कोई अमल बगैर रजा के कबूल नहीं होता। दरूद वाहिद चीज है। तू कहते हैं ना कि हालांकि मुसलमान दिखावा करता ही नहीं है, मुसलमान तो अल्लाह के लिए करता है, और मैं कि कोई दिखावे और रियाकाली के लिए पढ़े, तब भी मेरा अल्लाह कहते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है। अल्लाह आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। जुमा पढ़ते हैं तो जुमे की तरतीब यह होगी कि अभी जो है सुन्नतों के लिए वक्त दिया जाएगा और उसके बाद दूसरी अजान होगी,
پھر انشاءاللہ خطبہ ہوگا، دعا ہوگا، اور اس کے بعد پھر آپ درود پاک میں لگ جائیں گے۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کہتا ہے پھر لگ جاؤ، پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ ٹھیک، پھر درود پاک اسی بندے کی طرح پڑھیں گے جس کو بیچارے کو پتہ نہیں ہے منہ سے کیا آوازیں نکل رہی ہیں، اور وہ مال کھائے جا رہا ہے اور بے ہوش ہوا پڑا ہے۔ ایسے ہم روحانی دسترخوان پہ، یہ درود روحانی دسترخوان ہے، وہ جسمانی دسترخوان ہے۔ ایسے اللہ مجھے آپ کو یہ جذبے دے دے، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، اللہ ہمیں یہ لذت دے دے، اللہ ہمیں درود کا سرور دے دے، اللہ ہمیں درود کے ذریعے سکون دے دے، اللہ ہماری طبیعت کو مائل کر دے، گھائل کر دے، قائل کر دے۔ انشاءاللہ ان مجالس میں اپنے آپ کو فقیر بن کے، درویش بن کے، منگتا بن کے، بھیکاری بن کے بٹھائیں گے، بڑا بن کے نہیں، اللہ بڑا بنا کے اٹھائے گا انشاءاللہ۔ اور اپنی چیزوں کی حفاظت کریں، کوئی ہماری غفلت سے گناہ گار نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پلیز چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں، جزاک اللہ۔